Yes, students, good morning. A very warm welcome to today's class. First of all, just raise your hand if you find my voice just clear to you. Yes, very good. Okay. Everyone? Yes, great. Yes, the screen is visible to you all. You can see the poetry, The Rain on the Roof in front of you on the screen. Yes, okay. So in today's class, we are going to do this poem. This is a very beautiful, very meaningful poem. Yes, The Rain on the Roof. Now rain, you all know what rain is. Rain क्या होती है? बारिश. ठीक है. And roof, you know, roof is what? That is your terrace. तो रेन ऑन द रूफ, इट्स नॉट सिंपली कि हमने बोल दिया छत पे बारिश की बूंदें गिर रही थी एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस पोएम मींस. पोएट्री, यू ऑल नो, पोएट्री वट एवर इज सीन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. पोएट्री का जो मीनिंग होता है इज कम्प्लीटली एन इम्प्लाइड मीनिंग. ठीक है. पोएट्री का जो मीनिंग होता है इट्स कम्प्लीटली एन इम्प्लाइड मीनिंग. पोएट्री जैसे दिखती है इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट. इतना सिंपल नहीं होता है. अर्लियर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू पोएट्रीज एंड उससे आपको इतना तो आइडिया हुआ होगा दैट पोएट्री ने जो बोल दिया, क्या पोएट्री का सीधे सीधे वो मतलब होता है? नो, उसका सीधे सीधे वो मतलब कभी भी नहीं होता. पोएट्री हमेशा आपको इम्प्लाइड मीनिंग देती है एंड जिसने उस मीनिंग को पकड़ लिया ना, that person we can know is in a habit or has the habit, and that person only can understand the way the poetries are written. कहीं ना कहीं एक बात होती है, ऐसा कहा जाता है जैसे पोएट बनने के लिए आपको एक पोएट वाला ब्रेन चाहिए ना, वहीं पे समवेयर इट इज सेड दैट पोएट्री समझने के लिए भी आपको समवेयर कहीं ना एक वो पोएट वाले इमोशंस, पोएट वाली इंस्टिंक्ट चाहिए होती है, तभी आप पोएट्री को समझ सकते हो. बिकॉज सिंपली रेन ऑन द रूफ ये वो बच्चों वाली नहीं है ना, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल की हम्टी डम्टी वॉल पे बैठ गया एंड ही हैड अ ग्रेट फॉल और वो वॉल से नीचे गिर गया. ये इससे बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर कोई वॉल पे बैठ रहा है तो भी वो कुछ और सिंबलाइज कर रहा है, अगर कोई वॉल से गिर रहा है तो भी उसका सिंबलिज्म होगा वो कुछ अलग ही होगा. So this way, this poem, The Rain on the Roof, somewhere has something very different. And now what it is, let us see. See. Now, first of all, I'll just read the text. फिर मैं आपको उसका central idea दूंगी. I'll let you know what exactly the poem is about, and then we will just take the text. But before giving you the central idea, I'll just read out the lines of the poem to you, so that when you are going to understand the central idea, तो आपको कुछ words तो दिमाग में होंगे related to the poem. Okay. So first of all, see the blue, that is the blue block. उसमें देखो क्या लिखा है. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. Now, जब sky covered होता है with dark clouds and it starts raining, तब क्या आपने कभी भी have you ever listened, क्या आपने कभी सुना है to the patter of the soft rain? soft rain, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं उसकी आवाज को सुना है on the roof? What thoughts flashed your mind as you heard this melody of nature? क्या थॉट्स फ्लैश होते हैं आपके माइंड से जब आपने कभी सुनी हो इस मेलोडी ऑफ नेचर को? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. आप इस पोएम को सुनोगे, रीड करोगे एंड यू विल जस्ट थिंक अबाउट इट कि पोएट जो है उसने when he was lying down on his bed in his room and there was rain falling on the roof,
उस समय उस आवाज को सुन के what he was just dreaming of or what he was just thinking of, उस चीज के बारे में this is the poem. So that is, इसमें आपको poet के thoughts मिलेंगे that you have to study. Okay, so this poem, The Rain on the Roof. When the humid shadow hovers over the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain by Kurt Skinny. So first of all आप लोगों को ये पता होना चाहिए that who has written this poem, कौन है इसके poet, Kurt Skinny. ठीक है, Kurt Skinny is the poet. Kurt Skinny जो थे ना, वो बहुत ही we can say बहुत ही amazing sort of poetries लिखते थे related to nature. हमारे maximum syllabus में हमने जितने poets पढ़े हैं ना, they all are who, they all are the nature poets. सारे के सारे क्या हैं, nature poets हैं. So see, now we will move to the central idea of the poem. So understand it very properly. ये poem हमें क्या बताती है? It tells us about the healing power of the nature. Nature की healing power, ठीक है? Especially किसकी? Rain की. And that too when heard from the cozy bed in the lovely cottage. अब suppose आप लोग अपने आराम से cozy से bed में मजे से सो रहे हो and outside बाहर तूफान बारिश ये पूरा माहौल हो जाए, so what a pleasant feeling you are going to have. That is, it is going to be pleasant to live and sleep that snugly position in the cottage on a rainy day. आप सोचोगे ऐसे ही स्नगल करके यहाँ पे सोए रहे, कौन सी क्लास लेनी है, क्या लेना है, नथिंग वी हैव टू टेक, वी जस्ट हैव टू एंजॉय दिस situation of ours as it's raining outside beautifully and being lying happily in our snuggly bed. The tinkle of the rain brings dreamy fancies with brilliant hues of recollection, and fondest memory of the poet's mother is stirred before him in all her gentle loveliness in the pitter patter of the rain, we can say. अब tinkle जो होता है rain का, tinkle is what? Tinkle is something जो falling sound है, rain falling sound है, tinkling. इसके साथ बहुत से ड्रीमी रिकलेक्शंस ऑफ द मेमोरीज आ जाते हैं पोएट के दिमाग में, एंड देयर आर मेनी मेमोरीज दैट कम टू हिज माइंड, बट द फॉन्डेस्ट मेमोरी, द बेस्ट मेमोरी जो उनके दिमाग में आती है वो क्या है? ऑफ हिज मदर. ठीक है, उसकी मदर की मेमोरी उसके सामने आ जाती है एंड कि उसको वो याद आता है सारा वो लवली जेंटलीनेस जो पिटर पैटर ऑफ द रेन हो रही है, द साउंड ऑफ द रेन, इट ब्रिंग्स द ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ पोएट्स मदर इन फ्रंट ऑफ him. So इसमें क्वेश्चन आता है that what kind of memories the poet has and what is the fondest memory that comes to the poet. So the fondest memory is the loveliest memory of his mother. ठीक है, now see, rain on the roof ये जो कोट्सकीनी ने लिखी है, it's about the memories that the rain evokes, we can say, and poet इसमें हमें क्या describe करेंगे? The atmosphere of the nature when it rains. स्काई किस तरह से क्लाउड से कवर हो जाता है एंड एवरीथिंग गेट्स डार्क, एंड जैसे ही रेन पोर होना शुरू होती है, what kind of changes comes. And when we come to the poet of this poem, we find the situation that he lies in his cottage chamber bed and he listens to this pitter patter sound of the rain, and this pitter patter sound of the rain comes from where? When the rain falls on the roof. Now listening to this sound, it echoes in his heart, and this sound of rainfall and his mind, it gives birth to what? It gives birth to thousands of memories, thousands of fanciful thought, good and bad, each kind of memories comes to his mind, and
It resurfaces his mind as he listens to this beautiful voice of the rain. Now, poet is just filled with nostalgia. Now, why? Because when he remembers the days his mother used to see him fall asleep, तो उसे वही दिन याद आ रहे हैं when it used to rain outside and he used to lie in his bed, and how full of love his mother used to stand in front of him and just look at him. ये वो एक fondest memory का पल था, एक वो याद थी जो उसको आने लगी. ठीक है, अंडरस्टूड. ये this was all the we can say, ये basic था आपकी poem का, and I hope if you have understood the basic of the poem, now we will be able to understand the exact lines of the poem. So if you have understood this basic, this idea, the central theme, just एक बार quickly hand raise करेंगे, then मैं आपको poem की line to line explain कर देती हूँ. Good. Okay. चल. Very good. Okay. So now see. When the humid shadow hovers over the starry sphere. एक एक stanza करके लेंगे. Read out the first stanza, then we'll take it line by line. When the humid shadow hovers over the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Okay? अब आई थिंक जितना हमने पढ़ा है उससे आई थिंक आपको कुछ इतनी लाइंस कुछ तो समझ में आई हैं. सो दीज लाइंस मीन्स व्हाट, जब पूरा का पूरा जो स्काई था, ह्यूमिड शैडो होवर्स, आपको ध्यान है जब आसमान पूरा बादल से ढक जाता है तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, इट बिकम्स ह्यूमिड, उमस हो जाती है ना. हम बोलते हैं आज बहुत उमस हो रही है, बादल ही बादल हो रहे हैं, हवा नहीं चल रही, उमस हो रही है. एंड उमस होने के बाद में व्हाट वी से कि क्या आने वाला है, बारिश. जितनी ज्यादा उमस होती है उतना ही हमें ऐसा लगता है बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. So when the humid shadow hovers over the starry sphere refers to the sky. ठीक है. So when पूरा wet atmosphere हो जाता है, हर तरह remains in one place in the air. Starry sphere means the sky को रेफर किया है यहाँ पे, sky that is full of stars. तो पूरा आसमान जो है बादलों से भर गया है एंड पूरा उमस हो गई है, ह्यूमिड हो गया है. एंड द मेलनकली डार्कनेस, और क्या है ना, जब ऐसा माहौल हो जाता है ना तो एक बहुत अजीब किस्म का वो हो जाता है डार्कनेस. मेलनकली मीन्स एक सैडनेस सा छा जाता है सारी तरफ. डार्कनेस है लेकिन एकदम सुनसान, बिल्कुल सैडनेस आ जाती है, ऐसा सौरो वाली सी फीलिंग आने लगती है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, और ऐसा ही होता है ना जब कोई इंसान बहुत सैड हो जाता है अल्टीमेटली द पर्सन स्टार्ट्स वीविंग. ठीक है. अल्टीमेटली द पर्सन स्टार्ट्स वीपिंग जस्ट टू लेट आउट द इमोशंस. तो ऐसा लगा जैसे ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था, ये पूरा जो स्टारी स्फीयर था ना, इट वाज फिल्ड विद सैडनेस. And ultimately it pours down in which forms, it starts gently weeps in the rainy tears in the form of raindrops. Raindrops को यहाँ पे rainy tears कहा गया. What a bliss to press the pillow, and he says that what a bliss, what an amazing bliss it is to press the pillow. और जिस वक्त आप वहां पे सो रहे हो, it's such a great happiness just to press the pillow of a cottage chamber bed. आपका एक छोटा सा घर है, उसके अंदर एक रूम में आप सो रहे हो, your head is on the pillow and suddenly you hear कि बाहर बारिश हो रही है and आपको बाहर तो जाना नहीं है. So what kind of thing you are going to enjoy? आप उस पिलो के अंदर और अच्छे से मुंह प्रेस कर लेंगे और मजे से नींद लेंगे एंड यू विल जस्ट लाई डाउन इन अ रिलैक्स्ड वे, और आप जस्ट उस पिटर पैटर को सुनते रहोगे एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. और आप एकदम शांति से लेटे रहेंगे एंड यू विल कीप लिसनिंग टू दैट साउंड ऑफ ड्रॉप्स above the head. ठीक है. Of soft rain overhead, of those sounds of raindrops over your head, above your head, that is when they are falling on the roof. So this way we can say यहाँ पे poet किस position में है, he is in his cottage bedroom and he listens to the patter of the soft summer showers overhead on the roof. Okay. So this darkness, this sad darkness, ultimately it weeps in which form? This dark sadness ultimately weeps in the form of rainy tears. Yes, कुणाल कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करो.
गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग कुणाल। हाँ, क्या पूछ रहे हो, पूछो। मैम पैटर मीन्स? पैटर एक साउंड को कहा गया है। रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है ना, जब जैसे छत पे कभी भी बारिश की बूंदें गिरती है तो आप सुन सकते होगे आवाज टप 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 टप। हम उसको नॉर्मली बारिश की टप टप बोल देते हैं, है ना। यस टिप मैम। टिप और टप टप बोल देते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको क्या साउंड दिया है? पैटर साउंड दिया। सो पिटर पैटर इज बेसिकली द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ठीक ओके है। मैम। पोएम भी ओके करना। ओके वासुकी, यस, व्हाट यू वांट टू आस्क? Ma'am, the term shadows over are describing dark clouds. हाँ, दे आर डिस्क्राइबिंग द डार्क क्लाउड्स। जिन क्लाउड्स के आसमान में छा जाने से क्या हो गया है, सब जगह वेट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है। Yes, ma'am. Okay. ओके Thank you. ओके ओके। यस, एनीवन एल्स? यस दिव्यांशु, अनम्यूट करो। मैम जो शैडो के बाद मैम होवर लिखा है ना, उसका मीनिंग बताना। होवर का, होवर होता है रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। बादल हो गए, इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, आसमान को ढक के पड़े। ठीक है, दैट इज द क्लाउड्स आर नॉट मूविंग। और वो पूरे एटमॉस्फेयर को उन्होंने कैसा कर दिया है? डार्क एंड ह्यूमिड। तो उसको यस होवर बोलते हैं। ठीक है। ओके। यस योजना, अनम्यूट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग योजना, हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम, एक तो सेकंड लाइन में जो स्टेरी स्पेयर्स का मतलब क्या है? सारी स्पेयर्स इज स्काई, आसमान। अच्छा, बिकॉज और ये नाइट मेले टाइम था। अभी ये जो स्टोरी है ये नाइट टाइम की है, सुबह की बारिश नहीं है, ये रात की है। तो आसमान पूरा कौन सा आसमान को, यहाँ पे रात के समय आसमान में क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं ना। दैट इज वाई इट्स रेफर स्टारी स्फीयर। और ये इसके नीचे वाला जो वर्ड है? मेलेंकली, मेलेंकली सैड होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, दुखी। तो अब रात का समय है, बादल भर गए, उमस हो गई, एकदम गुम गुम माहौल हो गया, घुटन घुटन वाला। तो वहां पे कैसा इमोशन स्प्रेड होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे उदासी रहेगी। सो दैट इज सैडनेस। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their threads into woof, and I listen to the patter of the rain upon the roof. Now see, ये कह रहे हैं every tinkle on the shingles। ठीक है। शिंगल्स यहाँ किसको बोला है? छोटे छोटे गोल गोल पत्थर। ठीक है। सो एवरी टिंकल, जब रेन रूफ पे गिरती है तो वो क्या साउंड देती है? पैटर साउंड देती है। जब रेन ड्रॉप्स छोटे छोटे राउंड स्टोन्स पे गिरती है ना, तो वो कौन सी साउंड देती है? टिंकल साउंड देती है। सो हर एक टिंकलिंग साउंड जो थी ऑन द शिंगल्स, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? दैट इज अ रिंगिंग साउंड। इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द साउंड। दैट इज एक इको स्प्रेड हो जाता है आपके दिल के अंदर ना, एक इको डेवलप हो जाता है, एक गूंजने लगती हैं ये आपके दिल के अंदर, ये टिंकलिंग की साउंड। एंड विद दिस टिंकलिंग साउंड, थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज, मतलब कल्पनाएं आपके दिमाग में आने लगती हैं। into busy being starts, आप ये चीज शुरू होती है and your heart gets busy imagining all these things। आप इन सारी imaginations में खो जाते हो। and थाउजेंड फैंसीज तो कहने का मतलब थाउजेंड ऑफ थिंग्स यू स्टार्ट इमेजिनिंग। फैंसीज इज व्हाट यू इमेजिन, व्हाट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होती है, बट यू जस्ट इमेजिन देम। तो थाउजेंड ऑफ थिंग्स तो ऐसी होती हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस भी आने लगती हैं आपके। थाउजेंड रिकलेक्शन मींस एंड थाउजेंड ऑफ ड्रीम्स, हजारों सपने ऐसे होते हैं, हजारों यादें ऐसी होती हैं जो अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। स्टार्ट्स वीविंग थ्रेड्स इनटू वूफ, कहने का मतलब है जो कहीं ना कहीं दे स्टार्ट वूविंग अ पैटर्न। दैट इज एक वर्ड है, ये डिस्क्राइब करता है साउंड को। वूफ इज बेसिकली अ साउंड। तो ये जो साउंड्स होती है ना, इसके साथ में हजारों सपने आके अपने यादों को यहाँ पे आपके दिमाग में बुनना शुरू कर देता है। दैट इज द स्टार्ट वीविंग। As I listen to the patter, ये सब कब होता है? When I just listen to the patter, that is when I just listen to the sound of the drops that are falling
of the rain upon the roof that are falling, that raindrops जो कहाँ पे fall हो रही हैं, upon the roof. So ultimately what this stanza says, that every tinkle on the shingles के ऊपर हर एक जो tinkling sound होती है, हर पत्थर के ऊपर एक रेनड्रॉप गिरने की जो झनकार होती है ना, वो आपके दिल में क्या कर देती है, they start echoing, गूंजने लगती है. And with this echo we can say 1000 things होती हैं जिनको आप imagine करना शुरू कर देते हो. And along with this 1000 ऐसी memories का recollection होता है जो आपके दिमाग में आने लग जाती हैं, हजारों यादें आपके दिमाग में we can say एक weave होनी शुरू हो जाती है, ताना बाना बुनने लग जाती हैं आपके दिमाग में. And ये सब कब होता है, when you just listen to the sound of the raindrops falling upon the roof. Understood this stanza? Is it clear? अब इसमें कुछ पूछना है in this stanza तो you can ask. Yes. Yes जतिन, क्या पूछ रहे हो? Unmute करो. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग जतिन. हाँ क्या पूछ रहे हो जतिन, क्या डाउट है बोलो. मैम वीप का मतलब क्या होता है? इसका वीव का, वीप. देखो वीव का मतलब होता है बुनना. बुनना. हाँ बुनना. आप मम्मी स्वेटर बुनती होंगी या नानी दादी स्वेटर बुनती होगी ना, उसको वीविंग बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या वीव होने लग जाता है, 1000 ऑफ मेमोरीज आपके दिमाग में अपना वीकेंड से एक चीज बुनने लग जाती हैं. बहुत सारी मेमोरीज आपके दिमाग को घेर लेती है. सो दैट इज वो कहीं ना कहीं उसकी जो साउंड होती है, दे स्टार्ट वीविंग द रिकलेक्शन ऑफ 1000 ऑफ मेमोरीज इन योर माइंड. ठीक है. वीविंग बेसिकली, वीविंग का मतलब होता है बुनना, पैटर्न ऑफ वीविंग. ब्लिस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इसका? स्टैंजा में ब्लिस कहाँ पे है ये, फर्स्ट पैराग्राफ का पूछ रहे हो? यस मैम. कहाँ पे है फर्स्ट पैराग्राफ में? एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार मुझे दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो. ब्लिस मैम फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, फिफ्थ लाइन के अंदर है ब्लिस. वन. हाँ ब्लिस ना. हाँ ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. तो जब बारिश हो रही है और आप आराम से अपने तकिए में मुंह दबा के मजे से सो रहे हो, तो इट्स व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग, हैप्पीनेस की, खुशी की फीलिंग होगी ना. दैट इज व्हाई उसको हैप्पीनेस बोला है. ब्लिस इज हैप्पीनेस. ठीक है. और मैम फोर्थ में है वो भी. बारिश, अब सपोज बाहर बारिश आ रही है एंड सडनली मैसेज आ जाए आज कोई क्लासेस नहीं होंगी और आप सब सो रहे हो और आपको उठना नहीं पड़े, आप अपने तकिए में और अपने ब्लैंकेट में और अच्छे से घुस जाओगे, और वो कैसी फीलिंग आएगी, सैड होगे क्या कि आज क्लास कैंसिल हो गई? नहीं, आप क्या हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे. तो वो वाली, वो ब्लिस वाली फीलिंग है. ठीक है. यस मैम. हाँ और कुछ पूछ रहे हो? मैम इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर ही फोर्थ लाइन में है वीप. मैम मैं उसका पूछ वीप. रहा था. वीप, वीप का मतलब होता है रोना, क्राई. तो जब आसमान, आप क्या होते हो जब बहुत सैड हो जाते हो, व्हाट यू स्टार्ट डूइंग, दुखी, जब आपके दुख का भी अंत हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप रोने लगते हो. तो इसी तरह से जब डार्कनेस पूरा मेलेंकली हो गया, मतलब एक सैड डार्कनेस इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई पूरे आसमान के अंदर, दैट अल्टीमेटली द स्काई स्टार्टिंग डूइंग व्हाट, स्काई स्टार्टिंग वीपिंग. वीपिंग मतलब आंसू गिरना, ड्रॉप्स ऑफ वाटर. अब आसमान से कौन से टीयर्स आ रहे हैं, रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं. तो ऐसा कहा गया है दैट द melancholy darkness gently weeps in the form of raindrops, rainy tears. ठीक है. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके ओके. यस प्रखर, अनम्यूट करो. Hello, ma'am. यस प्रखर, हेलो, हाउ आर यू? Ma'am, I'm fine, ma'am. Ma'am, the line "every tinkle on the shingles has an echo in the heart." Ma'am, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब है, देखो पहले तो आप वर्ड समझो. टिंकल क्या होता है, रिंगिंग साउंड. ठीक है. कुछ भी Okay, चीज ma'am. के गिरने की आवाज. रेन ड्रॉप्स है ना. अब क्या होता है, आप नॉर्मली आप चेक करना, आप अपने ना घर का टैप ऑन करना. ठीक है. एक तो Yes, टैप ma'am. का पानी आप डायरेक्ट फर्श पे गिरने देना, उसकी साउंड अलग होगी. ठीक है. एक आप उसके नीचे पत्थर रख देना, साउंड चेंज हो जाएगी. एक आप उसके नीचे स्टील का सपोज एक बर्तन रख देना, तो उसके अंदर जब पानी गिरेगा तो उसकी आवाज बिल्कुल अलग होगी. When Yes, ma'am. raindrop falls on different kind of surfaces ना, तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स देती है. तो जब वो रेन ड्रॉप छत पे गिर रही थी ना, ऑन द रूफ, तो वो कौन सी साउंड दे रही थी, पैटर. जब वो शिंगल्स Yes. पे गिर रही है, अब शिंगल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर.
ठीक है, अच्छा, जब वो इन गोल गोल पत्थरों पे जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो वो क्या साउंड दे रही हैं, टिंकल की साउंड दे रही हैं। ठीक है, और ये जो टिंकलिंग की साउंड है ना, ये कहीं ना कहीं गूंज रही है। ठीक है, खालीपन होगा वहां पे तो खाली में आवाज क्या करती है, इको करती है ना, रिफ्लेक्ट बैक करती है। echo हो रही है तो ये। हाँ, तो वो साउंड क्या हो रही है, इको हो रही है। एंड दैट इको, वो इको कहाँ पे हो रही है, इन आवर हार्ट, Heart में। हमारे दिल के अंदर वी आर एबल टू हियर दैट टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो गुड, और कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके चलो गुड। ओके खुशी, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग खुशी, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो खुशी? मैम मैम सेकंड पैराग्राफ में लास्ट थर्ड लाइन इसमें जो लास्ट वर्ड है ना, वो उसका जो मीनिंग दिया हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है द थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम। लूम का मतलब क्या होता है? लूम होता है, आपने देखा है वो जो जैसे कपड़ा बनाते हैं, आपने चरखा देखा होगा या आपने कहीं पे कपड़ा बनता हुआ देखा है, एक स्क्वायर सा फ्रेम होता है, लकड़ी का एक Yes, फ्रेम ma'am. होता है, उसके अंदर वो जो एक स्टिक सी होती है, उसको घुमा चलाते हैं वो कपड़ा बुनता जाता है, वीव होता है क्लॉथ, है ना? तो वो जो एक Yes, स्क्वायर सा yes. फ्रेम है, कभी भी उसमें आज सपोज नहीं देखा, कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं देखा तो आज गूगल पे एक बार डालना, ठीक है, एक लूम डालना वर्ड, या फिर आप उसमें कोई Yes. वीडियो डालना, हाउ क्लोथ्स आर वीव्ड, तो आप उसमें देखना एक स्क्वायर Yes. कलर का, एक स्क्वायर सी शेप का एक फ्रेम होता है, उसके अंदर धागे होते हैं, और एक पर्सन होता है, वो एक लकड़ी का एक स्टिक होता है, उसको ऊपर नीचे करता है, तो उससे एक कपड़ा बनता है। तो एक्चुअली जो फ्रेम होता है ना, जहाँ पे वीविंग होती है, उसको लूम कहा जाता है। सो दैट बेसिकली इज द वूफ। ठीक है, यहाँ पे वूफ क्यों यूज किया है हमने, यहाँ पे वूफ को हमने यूज किया है कि यहाँ पे जो यादें हैं ना, उनका जो होता है, उनका एक फ्लो बुना जा रहा है। ठीक है, एक याद आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, चार आ रही है, तो इस तरीके से क्या है, जैसे यादें बुनती जा रही हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे उन्होंने वूफ और ये इस वर्ड को यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, ओके मैम। एंड मैम आपने कहा ना कि सिंगल्स होते हैं, सिंगल्स इधर मैम टाइल्स को नहीं कहा, क्या ऐसे पीछे दिया हुआ है, और है ना जो आप कह रहे हैं ना बारिश छत पे, जो छत पे पत्थर छोड़ना टाइल्स होगी ना? नहीं, अब वो हम इतना लॉजिकल सेंस में नहीं जाएंगे पोएम में। ठीक है, शिंगल्स बेसिकली गोल्ड स्टोन्स होते हैं। अब कहने का मतलब, आप उसको पत्थर ले लो तो पत्थर तो बहुत सारे होते हैं, बट जब हम यहाँ पे एक डीपर मीनिंग में जाएंगे ना, दे आर स्मॉल राउंड स्टोन, तो उनपे जब साउंड गिरती है अलग। एंड रही सही बात छत पे आवाज आने की, तो अब छत पे जो आवाज आती है, जरूरी नहीं है सबकी छत पे टाइल्स हो, कच्ची छत भी हो सकती है। ठीक यस है, मैम। कच्ची छत भी हो सकती है, हो सकता है नॉर्मली सीमेंटेड फ्लोर हो सकता है कोई और टाइल्स हो सकता है स्टोन्स हो, कुछ किसी भी तरीके की चीज हो सकती है। So when it's just falling overhead on the roof, it gives a patter sound, and when it comes on the small round pebbles, जिसको हम बोलते हैं shingles, then it gives a tinkling sound. Okay? ओके मैम, थैंक Okay. यू। Okay. Okay. Yes, Yash. हेलो मैम। हाँ यश, बोलो क्या पूछ रहे हो? मैम 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 एक बार मैम आप रेन ऑफ द रूफ का मैम एक बार शॉर्ट रिवीजन दे दोगे मैम, क्योंकि मैम आप हाँ जब बिल्कुल। पहले बोल रहे हाँ थे तो मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही थी मैम। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ही बस एक पैराग्राफ रह गया, वो फिनिश करते ही मैं आपको पूरी पोएम का एक रिवीजन दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके। सो नाउ we'll move to the third paragraph. That is, now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain by Coates Skyne. Now ये कह रहे हैं, now in my memory comes what, बहुत सी memories आती हैं, and now in my memory comes who? Comes my mother. मम्मी आ गई उनकी मेमोरी में। किस तरीके से, as she used in years gone, जैसे कि वो बीते सालों में आया करती थी, बिल्कुल सेम उस वे में उसकी मदर की मेमोरी उसको आई सामने। To regard the darling dreamers, तो ऑल दोस पीपल, जो बहुत प्यारे प्यारे सपने देखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो पीपल होते हैं, ड्रीमर्स जो होते हैं, उनमें एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, अब वो बोल रहा है उनके बच्चों के समान में वो माँ उस तरीके से आई। एंड वो क्या होते हैं, वो मदर जिन जब बच्चों को उनकी नीड थी,
ठीक है, वो मेमोरी मुझे याद में आई। डार्लिंग ड्रीमर्स उनको बोला जा रहा है जब वो उन्हें छोड़कर जाने से पहले, ठीक है, वो उनको किस तरीके से फॉन्ड लुक से देखा करती थी। तो इस मेमोरी को जब हम याद करते हैं, व्हेन द मदर इज नॉट विद यू एंड यू जस्ट हैव द मेमोरी ऑफ योर मदर, so all those darling dreamers who are dreaming about something, so उन्हें मैं बताऊं that this feeling when you feel that your mother as you used to look at that time, उस समय वो वाली याद जब आपको आ रही है कि आपकी मदर आपको देख रही हैं, और हम ये बोलेंगे कि सपना खत्म होने से पहले जब वो मदर आपको छोड़ के वहां से चली गई हैं, देन इट्स अ फीलिंग ऑफ एयर। एयर फीलिंग कहने का मतलब, जैसे हम एक इमोशनल फीलिंग देते हैं ना बिफोर वाली, दैट बिफोर आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो एंड बिफोर दैट द पर्टिकुलर थिंग गोज अवे, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एयर फीलिंग। So he says that fond look on me, so I can feel that loving gaze of my mother on me, and as I list to this refrain of what which is played upon the shingles by the patter of the rain, जो इन shingles पे play की जा रही है by the falling of the rain that is on these small round stones. So here the poet says, ultimately he says what? That he loved his mother a lot. He remembered her when he lied on his cozy bed just to enjoy the raindrop. It appears to him as if her mother was fondly looking at him. So during this sound, what is it? उसको बहुत सी memories आती हैं, and one memory that haunts the poet is the memory that of his mother. And this is, he says, quite often like every other darling dreamer, because his mother is no more. And ऐसे समय पे आपको बहुत से darling dreamer whose mothers are no more that have left them, उनको किनकी memory याद आएगी? अपनी mother की. And he also feels the fondness of looking on him, कि mother कितना fondness से, कितना प्यार से उसको देखा करती थी. And he remembers her while writing this particular song of rain. Okay, so now, so we know that this memory is the most, so many memories come to him, and this particular memory is very beautiful when his mother used to look at him when he was a child. And he said that whenever I said I could not do some work, she embraced me and she took me in her lap just to get the work done. And she used to feel sad and dejected if I were involved in any mishap. So he says, तो इसी तरीके से उसने बोला कि पोएट की मदर जब उसको कुछ अच्छा करना होता था ना, when he wanted to do something, तो उसकी मदर उसे हमेशा embrace करती थी एंड उसको अपनी लैप में लेती थी एंड just get the work done. तो उसी तरह से यहाँ पे पोएट wants to write something beautiful. तो देखो उसको किसकी मेमोरी ने उसको पूरा घेर लिया? The mother's memory. And this beautiful memory made her write something beautiful, and that particular writing we are studying over here. Okay, understood? अब बताओ क्लियर है ये वाला स्टैंजा आप लोगों को? Yes. So ultimately ये जो पोयम है ये क्या बोल रही है? ये पोयम बोल रही है, the poet is lying in his bed. He hears the sound of the clouds. Suddenly there is a quietness of the environment, and वो environment की जो quietness थी, it just disappears, and what comes? The sadness. And ultimately when the humidity is beyond its power, it starts raining lightly, and on the rain on the roof, it creates beautiful sound, that is the pitter patter sound. And listening at that sound, this sound echo in the heart of the poet, and this echoing created something great. It stirred something, it brought it created so many dreamy fancies, and along with that a lot of big recollection of the memories also come in his mind. And the third and the fondest memory that comes in his mind is of his mother. So number of things echoes in his mind, and he remembers number of things. Some memories are sweet and some are sad, both kind of memories.